everyone. So as we have discussed what is MTM, what is theta, delta, gamma, how options are priced, how it behaves, all those things we have discussed, right? With all these knowledge, eventually now we have to come to execution of trades, right? You have learned technical analysis also, you have learned everything. Now we'll use technical analysis tools to understand what should be our decision at what particular moment, and based on which we can have a decent, say, chance of being in the 7% category of traders which actually end up making some money from the market. So how do we do it? Let's discuss all this thing on charts. Now this is normal Nifty 50 chart. What I have done is I have put 20 moving average, as I have explained you a few times in this entire while, that you can use 20 EMA as a golden thumb rule, wherein if market is below 20 EMA, if you are in short position in the market, it is still okay, but don't be in a long position. Similarly, if market is above 20 EMA, if you are in a long position in the market, you will stand a better chance to gain some money. But in case you are in a short position, you will definitely end up losing some money. Okay, so over here what we will discuss, we'll discuss it in detail, that how you can plan your options trade. Okay, so we have learned theta, gamma, delta and everything, right? Now we have learned technical analysis tools also, and all this while we have been learning technical analysis, right? Now over here, if you remember correctly, I told you, right, that if there is a Marubozu candle that is getting formed, that trend may continue till 3-4 candles, right? So this Marubozu was created, then market kept on falling. For 3-4 candles it fell actually, right? Then I also explained you that if market is creating wick at a certain level, means market is trying to take a bounce from that level, right? Plus, if you remember correctly, I explained you the patterns like morning star and all, right? So market was falling, then you suddenly have a small green candle, and then you have a next green candle following up, right? This is basically a typical morning star pattern. We have learned this in the technical analysis thing, which we learned few chapters back, right? So over here, if you see that morning star was formed, then market starts reversing, then market is fighting with 20 moving average also, and it starts sustaining our 20 moving average, and then you can see this breakout movement has happened towards the upside, right? Market has actually shot up from here, right? So if say you have seen this pattern appearing in the market, what is your logical decision which you will do? Ideally you will think of going long in the market, right? That okay, this is a morning star pattern. Or even if you have not been able to identify this, over here you can obviously figure out that okay, market has started sustaining our 20 moving average, so we will take a bullish trade. Okay, if you are very learned, very experienced, you will decide entry somewhere over here. So हमको एंट्री कहाँ मिल रही है? 25,350 के पास, एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला मार्केट, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. से माई एपेटाइट इज ओनली 30-40 पॉइंट्स इन इंडेक्स. ओके, सो मार्केट 25,350 से ऊपर आया, ऊपर आते आते 400 तक आया. ठीक है, नाउ अगर ये 400 तक आया है, फ्रॉम 25,350 टिल 400, अगर मैंने एट द मनी 350 का से कॉल ऑप्शन खरीद लिया होता, तो ये 50 पॉइंट्स मूवमेंट जब हो रहा होगा तो मार्केट में ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 25 का बढ़ेगा. ठीक है, सो अगर मैंने एट द मनी ऑप्शन खरीदा है, मेरे को निफ्टी का टारगेट दिख रहा है से 50 पॉइंट्स, तो मेरे को क्या करना है? अपने ऑप्शंस में 25 पॉइंट्स का टारगेट रखना है, वो पॉइंट्स का टारगेट आते ही आई हैव टू बुक. नाउ सिंस माय टारगेट इज ओनली 25 पॉइंट्स, मेरा एसएल कितना होना चाहिए? नाउ लॉजिकली अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडल, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये लो लगा. अब ये लो के नीचे मार्केट अगर तोड़ देगा, इफ मार्केट फॉल्स बिलो दिस लेवल, तो ये जो हो रहा था ना, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, इसका क्या होगा? जो पैटर्न बना उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, बिकॉज पैटर्न अब रिवर्स कर गया. यहाँ पे पैटर्न रिवर्स नहीं किया है, राइट? तो अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो पैटर्न रिवर्स भी कर जाएगा. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आपने यहाँ समवेयर अराउंड दिस लेवल एंट्री बनाई 350 के पास,
और 335 330 जो जोन है ये है आपका वो जोन जहां से नीचे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न वहां पे नेगेट हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या दिख रहा है कि 350 पे हमने एंट्री की है, मार्केट अगर 330 तक आता है मेरे को स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। आपका 330 मार्केट जब आता है तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का ट्रिगर होगा? रफली 10-15 पॉइंट्स का। हमने टारगेट लिया है 25 पॉइंट्स का, 10 to 15 पॉइंट्स का हमको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। ओके, तो क्या ये आइडियली मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच कर रहा है? यस, इस केस में कर रहा है, बिकॉज मेरा रिस्क कितना है 10 to 15 पॉइंट्स का, मेरा रिवॉर्ड कितना है 25 पॉइंट्स का। ओके, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मैच कर रहा है। इन बेसिस दिस आई कैन से कि ओके दिस इज ए गुड ट्रेड टू गेट इन। तो अगर हमने सब रिसर्च सारा कर लिया, सब कुछ सही बैठ गया, वी विल एंटर इनटू द ट्रेड by calculating our risk and reward. If risk and reward is much more favorable, like 1:3 बन रहा है, 1:4 बोल रहा है, तो nothing like it. जितना रिस्क रिवॉर्ड फेवर में बनेगा उतना अच्छा है अपने लिए। हाँ, बट यस, जैसा मैंने बताया आपको कि हमेशा फेवर में ही हो कोई जरूरी तो है नहीं। जितना भी फेवर में हो 1:2 एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए कि वी आर एबल टू अचीव और नॉट। अगर 1:2 का ट्रेड भी दिख रहा है, वी कैन एटलीस्ट रिस्क ऑफ एंटरिंग दैट ट्रेड, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग में, बिकॉज जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगा कि आपका एक्चुअली में टारगेट कितना है, स्टॉप लॉस कितना है, यू कैन नॉट प्लान योर ट्रेड। सिमिलरली, इफ से यू आर एन ऑप्शन सेलर एंड यू थिंक मार्केट इज प्लानिंग टू गो अप, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 350 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, मार्केट ऊपर गया 400 तक गया, तो आपको टाइम वैल्यू का डीके भी मिला एंड आपको क्या चीज का डीके मिला, डायरेक्शनल डीके भी मिला, मतलब थीटा वाला डीके भी मिला। तो 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो 25 पॉइंट्स आपको ऐसे ही डीके मिल गया बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल डीके। एंड अगर ये प्रोसेस में से 3 आवर्स 4 आवर्स निकल चुका है तो एक दिन में 10-12 पॉइंट थीटा डीके भी मिलना है, तो आपको नेट 35 पॉइंट्स का डीके मिल गया। तो आप कितना गेन कर सकते हो? आपका गेन कितना बन रहा है? आपका गेन बन रहा है समवेयर अराउंड 35 पॉइंट। तो आपको स्टॉप लॉस कितना लेना है? 15 to 17 पॉइंट्स, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 15 to 17 पॉइंट स्टॉप लॉस अगर आप लेते हो तो समवेयर आपका लेवल आ रहा है 320 वगैरह के आसपास, बिकॉज 15 to 17 पॉइंट्स फ्रॉम 350, अगर 30 पॉइंट मार्केट नीचे आएगा तभी तो 15 पॉइंट्स का एसएल ट्रिगर होगा, राइट। तो समवेयर अराउंड 320 325 का जोन जो रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस जोन बन जाएगा। तो वेदर यू आर ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर, आपको पूरा कैलकुलेशन लेके देखना पड़ेगा कि वेदर द ट्रेड विच वी आर गेटिंग इनटू वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को दे रहा है एटलीस्ट। इफ इट इज गिविंग मोर, नथिंग लाइक इट, बट मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलना चाहिए एंड तब मेरा जो जजमेंट होगा ऑफ ट्रेडिंग वो सही जजमेंट होगा। एंड टेक्निकल एनालिसिस की जितनी चीजें हमने देखी हैं, जो जो चीज आपको लाइव मार्केट में जैसा दिखाई देगी आपको वैसा अप्लाई करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली उस तरह से हमको प्लान करना पड़ेगा। सो टेक्निकल एनालिसिस का जितनी चीजें हमने सीखी हैं सब आप जाके दोबारा रिवाइज करेंगे एंड वही सब चीजों को अप्लाई करके आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के टूल्स पे लगाएंगे। ऑप्शन आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है फॉर द ऑप्शन बायर, एंड ऑप्शन सेलिंग में थीटा डीके का एक एडवांटेज अलग से हमेशा रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल आप कर सकते हैं एंड ऑप्शन सेलिंग की काफी स्ट्रेटेजीज भी क्रिएट की जा सकती हैं। उससे क्या होता है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग और ईजी हो जाती है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज फिजिकल सेटलमेंट इन एफएनओ, how it works and all those things, how indexes are settled, how stocks are settled. I will just explain you in detail in that particular video. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.